Hello viewers, let me start with a very popular thought, that is, watch your thought as they become your words. Watch your words as they become your action. Watch your action as they become your habits, and watch your habits as they become your character. Very good morning all of my viewers. Today we are assembled for a very important theory class. Gentlemen, you may have different perspective of psychology test. Today I'm very sure that the class that we are having today you may not witnessed in your life as ever. It is my surety. How to write quality in the psychology test? It is a very obvious question in the mindset of the candidates who are real aspirant of armed forces examination, especially those who are repeaters. Suppose your conference out, you may have your doubts that what are the things that I missed in my previous interviews so that I was not recommended. And the thing is very clear, each and every mind knows it very clear that quality matters in this test. If you write the quality, then only you are going to be recommended. If you do not, so actually you can't get your recommendation. The thing is very clear. The quality that I am talking about is known as 15 officers like quality. Everybody knows 15 officers like qualities, which can be separated in 4 different factors: mind factor, heart factor, guts factor, limbs factor. So in these 4 factors, actually 15 OLQs are separated. So here I am not going to talk about all the respective qualities. Here I am going to talk about the important key quality, and I'll describe you on which basis you are going to write your answers, and then your quality may be displayed in various answers of psychology. So gentlemen, have a look over there. Psychology test, how to write OLQ in behavioral form. So as we know very well that if you write your quality, suppose that you are writing intelligent, I am an intelligent boy, he is an intelligent boy. So do you really mean that your intelligence component or quality is accepted? Here is doubt. I know that you know what I am going to ask this. Listen, when you write these qualities in some behave form, then only the quality is accepted, such as I topped my school, I become the monitor of my class due to academic skills. So here I am not talking about your intelligence, but actually in the passive form I am displaying my behavior. So behave form is accepted in the quality. It is very obvious that if you point in your key buttons A, B, C, D or something else, actually computer will take 0, 1 binomial figure only. Like that, whatsoever the answer you are writing in the SSB test, actually the assessors will take or grasp the quality factor only. So that do not write quality, as if you show quality, it would be like an impressionate psychology. Impressionate psychology means it is the psychology that actually you intentionally want to display, and possibilities are more that the quality will not be accepted. तो एक काम करते हैं, ऐसे ही सेक्शंस के ऊपर आज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आंसर्स को लिखें कैसे, जिससे कि हमारी क्वालिटी एक्सेप्ट हो जाए. और ये बहुत ही अच्छा एक फॉर्मेट है जिसको आप ध्यान से देखेंगे. इसमें क्वालिटी, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स इन टेस्ट, हमें सबको पता है 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, सभी को पता है. हमने 4 फैक्टर्स में भी बात किया है इसमें, जिसमें मैंने बताया आपको माइंड फैक्टर है आपका, हार्ट फैक्टर है आपका, गट्स फैक्टर है, लिम्स फैक्टर है आपका. तो ये 4 फैक्टर्स में सब रटा हुआ चीज़ है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसमें, और इसको लिखने से सिलेक्शंस होने के चांसेस भी हैं, ये भी आपको पता है. लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हाउ टू डिस्प्ले क्वालिटी इन बिहेवियर फॉर्म. इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन इन द माइंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली दोज हु आर रिपीटर्स. क्योंकि बिगिनर्स के लिए तो जो भी बताएं बहुत अच्छी बात, रिपीटर्स को पता है कि ऐसा क्या नहीं किया मैंने जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ. सो जेंटलमैन, हियर आई एम गोइंग टू टेक one key quality, that is sense of responsibility. Do you know what is sense of responsibility? Sense of responsibility is also known as the key quality of all the qualities that we have. So we can compare sense of responsibility
is a quality which can be compared like a crane. Have you heard the word crane? Crane means, suppose the rest quality you have which is required in you, so are in the below average. I'm not talking about bottom, because bottom quality cannot be uplifted. Suppose those qualities which are required to pass the examination and which are below the average, and you have the sense of responsibility, so what is the outcome in that? Suppose I'm talking about sense of responsibility is like a crane. So crane, it is the below average quality, it is putting the quality above the average. It is like a crane. Sense of responsibility is the main important quality out of all the qualities that we actually study. Here I want to clarify one thing, that I am not saying this that other qualities are not important, but sense of responsibility is the key quality. So that आज की क्लास में हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्वालिटी को समझे और बहुत सारी क्वालिटीज के ऊपर इसके आंसर्स आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सपोज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ क्वालिटी एंड आई वांट टू डिस्प्ले दिस क्वालिटी, क्योंकि हमें पता है ये की क्वालिटी है और इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत सारी क्वालिटी को कैरी करता है अपने साथ ये। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेव फॉर्म हमारे पास क्या होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि हमें टेस्ट क्या करना, हमें टेस्ट ये करना, जनरली हम तैयारी क्या करते हैं, आपने बहुत सारे वेटरन्स को सुना होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि जब आप आंसर कैसे लिखें तो आपको ये बताएंगे रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं क्वालिटी का बिहेव फॉर्म, और बिहेव फॉर्म को फिर रिस्पॉन्स टेस्ट में डालें। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप इसमें। आई होप दैट you are taking your attention in the respective lecture. Sense of responsibility, the key quality. Then what should be the behave of sense of responsibility? क्योंकि बहुत ही की क्वालिटी है इसलिए इसका बिहेव फॉर्म बहुत बड़ा है, इसके डोमेन जो है बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। तो सबसे पहले हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसा सेंस है जो कि पर्सनल ग्राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। दूसरा है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको अपनी क्वालिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करनी है तो वो बात जो है आपके बिहेव फॉर्म में दो जगहों पर दिखती है। एक है आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी दिखती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों ही अलग अलग जगह पर है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको 15 OLQs में से सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसका है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। इसको अगर सही से समझ लिया तो आप समझ लीजिए अराउंड 5 to 7-8 क्वालिटीज जो है आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही चली जाएंगी। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से नहीं होता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, तो आप तो प्रैक्टिस करेंगे ना उसको, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की क्वालिटी दैट ब्रिंग्स द लोअर एवरेज क्वालिटी, not bottom quality, below average quality to the marginal scale. So here personal responsibility and social responsibility. So what do you mean by personal responsibility? तो एक काम करते हैं, दोनों को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी हमारी क्वालिटीज आ जाती हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डोमेन है इसका। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके पूरे साइकिल, देखिए मैंने लिखा हुआ है इसमें। अब मैं आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा TAT में कैसे लिखना है, वर्ड वैट में कैसे लिखना है, SRT में कैसे लिखना है, SDT में कैसे लिखना है। तो एक क्वालिटी का अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर तैयारी करेंगे इसमें, तो आपकी तैयारी जो है ना आपके सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड पर होगी। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया। सो दैट आई मीन टू से तो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है इसमें, यू मस्ट बी honest towards yourself, खुद से ईमानदार होना सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। नंबर 2 हम ले लेते हैं इसमें, देखिए हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, उसके लिए ब्लेम दूसरों को करते हैं इसमें। सो एक्सेप्ट द मिस्टेक, सपोज एक्सेप्ट, कभी कभी कोई गलती करते हैं उसको एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, वो कहते हैं एडमिटिंग एरर्स क्लियर द स्कोर्स एंड प्रूव यू बेटर देन बिफोर। सो ऑलवेज रिमेंबर, admitting errors, accept the mistakes. Suppose you committed some mistake, accept it. It is the responsibility part of yours. So जब हम बात करते हैं honest toward yourself, अपने लिए ईमानदार होना, अपने लिए ईमानदार होने में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलरली सुबह उठना,
एक्सरसाइज पे जाना, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड नॉट स्पीक फॉल्स टू एनीबडी एल्स. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यू शुड ऑनेस्ट टुवर्ड योर सेल्फ. आपने सुबह सोचा है कि रोज़ मुझे जॉगिंग पे जाना है, और जॉगिंग पे जाने के लिए आप सुबह कह रहे हैं नहीं आज तो लेट हो गया कल जाऊँगा. दैट इज़ नॉट ऑनेस्टी टुवर्ड योर सेल्फ. तो यहाँ पर अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड पे कौन कौन सी क्वालिटी है इसको हम थोड़े से एम्फोसाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इसमें. एडमिटिंग एरर्स हैं जिसमें डू नॉट ब्लेम, डोंट ब्लेम. दूसरों को ब्लेम नहीं करना है इसमें, अपने किसी भी चीज़ों के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना है. सपोज यू स्कोर लेस मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, देन व्हाट? सो माई टीचर वॉज नॉट गुड, माई पेरेंट्स डिडेंट परमिट मी फॉर कोचिंग क्लासेस सो दैट आई स्कोर लेस मार्क्स. So it is a kind of sharing the blame, sharing the blame. So don't share it, you accept it. If you are to be blamed, yes, I am. Why so? Because जब ये चीज़ चल रहा था तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तब उसी समय एक्शन लेना चाहिए था. तो डोंट ब्लेम एनीबडी. सो दैट इज द पर्सनल रिस्पॉन्स. तो ये थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. तो हमने अभी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखा है इसमें, यानी कि ऑनेस्ट खुद के लिए रहना है. कोई एग्जाम्पल, रोज रूटीन पे जो है जॉगिंग पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं आप. एक्सेप्ट द मिस्टेक, जो भी गलती कर रहे हैं उसी समय एक्सेप्ट करेंगे इसमें. येस आई कमिटेड इट. मार्क्स क्यों कम आए, ग्रेजुएशन मार्क्स क्यों कम है, इंटरमीडिएट मार्क्स क्यों कम है, येस सर आई वॉज एंगेज इन दैट, बट डू नॉट ब्लेम इट. माई टीचर वॉज नॉट गुड, इट इज काइंड ऑफ ब्लेमिंग. नहीं, डोंट ब्लेम एनीबडी लाइक दैट, डू नॉट ब्लेम इट. तो ये हमने बात की है जिसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेगमेंट को आपके बिहेव फॉर्म से बताया है. अगर आपने ऐसी कुछ बात की है तो आपका ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज बढ़िया जा रही. अब हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड इन योर बिहेव फॉर्म. हम बात करते हैं अपने जिम्मेदारी की बातों को. जिम्मेदारी की बात दो तरीके से एक्सप्लेन करना है, एक अपने पर्सनल ग्राउंड पर एक्सप्लेन करना है, एक अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करना है. दो तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं इसको. तो जब हम इसको सोशल ग्राउंड पर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने सिविक सेंस की बात करते हैं. सिविक सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सिविक सेंस? हम जिस समाज में रहते हैं उसके कुछ कायदे कानून हैं, जैसे कि गंदगी नहीं फैलाना, जैसे कि एनवायरनमेंट को साफ रखना, प्लांटेशन को मोटिवेट करना, पब्लिक प्लेसेस पर जो है स्मोकिंग नहीं करना. ये सिविक सेंस की बात हो रही है. तो यहाँ पर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब भी हम बात कर रहे हैं इसमें, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सिविक सेंस. सिविक सेंस आपके लिए नहीं है, हमारे समूह के लिए. इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अवेयरनेस. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स, तो अवेयरनेस की बात करें. मान लेते हैं हम गार्बेज की प्रॉब्लम की बात करते हैं, मान लेते हैं हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि एक सोशली जनरेटेड है आपकी. जैसे बहुत सारे लोग जो है गार्बेज को या प्लांट को कट करते हैं इसमें, तो दैट इज़ अ सोशल इशू. इलिटरेसी को भी ले सकते हैं, सोशल इशूज़ है. तो सपोज यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हाउ यू असिस्ट, हाउ यू गिव योर असिस्टेंस इन दैट. सो ये आपकी अवेयरनेस के ऊपर जाती है. नेक्स्ट आपका करेज स्किल्स भी आता है इसमें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम जिम्मेदारी में लेके चल रहे होते हैं तो हमें साहस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कूड़ा फैला रहा है इसमें और आपने जाके बोलने की कोशिश की, तो सोच रहे हैं कि मैं क्यों बोलूँ, हो सकता है मेरे से लड़ाई हो जाए इसमें. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ करेज. तो आप जो है आपके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में सबसे ब्रॉड है आपका सिविक सेंस. सिविक सेंस सभी को कवर करता है आपका, तो ज़्यादा इसको एलोबरेट नहीं करते हैं इसमें. सिविक सेंस यानी हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की कोई जिम्मेदारी है उससे लेकर हम बात करते हैं. दूसरा अवेयरनेस वाली जो बात कर सकते हैं, ये भी सिविक सेंस में आता है. करेज रिक्वायर्ड होती है व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो करेज इज़ रिक्वायर्ड. तो करेज इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कि आपके ओपोनेंट जो है हो सकता है आपको हार्म करें या आपकी बात से एग्री नहीं करें. तो इसमें आपके जो है करेज की भी ज़रूरत पड़ती है और आपके अदर फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन हम इसको कॉमन अगर लेके चलें, इसमें सिंपल सा एक वर्ड लेके हैं, सिविल सेंस. सिविक सेंस जो होगा आपका, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो अभी तक क्या पढ़ा हमने? क्वालिटी में हमने 15 क्वालिटीज़ को नहीं पढ़ा. सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ा. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर फॉर्म क्या है आपका, व्हाट इज द बिहेवियर फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसके दो फॉर्म होते हैं इसमें, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ होगा, एक्सेप्ट द मिस्टेक यू कमिट, डू नॉट ब्लेम अदर्स, ऐसी करके कुछ बातें होंगी. नेक्स्ट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिविक सेंस से रिलेटेड, सिविक सेंस यानी हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर जो भी सेंस से रिलेटेड, कूड़ा नहीं फैलाना, पेड़ नहीं काटना, इसमें गंदगी नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, जो भी सिविक से रिलेटेड सेक्शंस हैं हम इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो बातें जो है आपकी ये थ्योरी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिस्पॉन्स एंड टेस्ट, SSB टेस्ट। अब हम रिस्पॉन्स क्या करें? अब हम बात करेंगे आपके साइकोलॉजी के टेस्ट के, TAT के, नेक्स्ट बात करेंगे WAT के, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें SRT के, और लास्ट बात करेंगे इसमें SDT। ये 4 अलग अलग पार्ट के टेस्ट हैं आपके साइकोलॉजी पार्ट के इसमें, और 4 टेस्ट में जो है हमने एक क्वालिटी को लिखा है। हमें तो पता है ना कि क्वालिटी सिर्फ लिखना है इसमें, और क्वालिटी को डायरेक्ट नहीं लिखना है, उनका बिहेव फॉर्म लिखना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने लिखा है इसमें आई डू माई एक्सरसाइज डेली, सो आई डू माई एक्सरसाइज डेली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल लेवल पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ इसमें आई मोटिवेट अदर्स फॉर प्लांटेशन, आई मोटिवेट अदर्स टू अवॉइड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो आप मुझे बताइए कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मोटिवेशन अदर्स में चला गया, डेली एक्सरसाइज आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया इसमें, आई डू नॉट ब्लेम फॉर माई मिस्टेक, तो ये आपका पर्सनल सेक्शन में चला गया। तो यहाँ पर ऐसे सेक्शंस को लिखें। हेयर आई वुड लाइक टू कोट डोंट यूज, नेवर यूज, नॉट, नेवर, डोंट, इसका यूज़ नहीं करना है टेस्ट में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके साइकोलॉजी टेस्ट में कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, तब इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये सारे वर्ड जो हैं आपके अब इन टेस्ट में कैसे यूज़ होने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं हम TAT की स्टोरी लिख रहे हैं। TAT में कुछ दिखाया कि कुछ जंगल हैं, कुछ पेड़ हैं, या कुछ ऐसा कुछ कमेटी या ग्रुप बना हुआ है उसमें, जिसको हम न्यूट्रल पिक्चर कहते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरीज आर देयर इन TAT? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर देयर इन TAT। थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट कहते हैं इसको। पहला पॉजिटिव स्टोरी होता है, दूसरा है नेगेटिव स्टोरी होता है। नेगेटिव मतलब इंक्लाइंड पिक्चर होता है, नेगेटिव पिक्चर, पॉजिटिव पिक्चर, और नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल पिक्चर। न्यूट्रल पिक्चर होता है जिसमें आप यू कांट डिसाइड दैट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, समथिंग इज गोइंग ऑन बट एक्चुअली यू कांट डिसाइड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो भी पिक्चर है उसमें अगर हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है तो आप जो है आप कुछ सिविक सेक्शन से बनाइए। मान लीजिए आपको ग्रुप दिख रहा है इसमें, तो ग्रुप के साथ आपका एसोसिएशन आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाएगा, तो यहाँ पर दिखाएंगे उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पार्ट को। मान लेते हैं अगर कोई कैरेक्टर अकेला है, सपोज यू परसीव अ सिंगल कैरेक्टर एंड यू आर नॉट परसीविंग अदर कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद दैट लीडिंग कैरेक्टर, सो इट मीन्स दैट यू कैन डिस्प्ले योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सी है इसमें? ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर रूटीन वर्क। आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें कि वो अपने वर्ड के लिए डेडिकेटेड है, अपने रूटीन वर्क में काम कर रहा है। जनरली कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, अ स्टूडेंट इज रीडिंग अलोन इन हिज रूम, स्टडी रूम। तो अकेले एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सो क्या जा रहा है, क्या सेंस जा रहा है? उसकी एकेडमिक स्किल्स। तो आप उसमें उसके TAT में उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट लिखें, क्योंकि ये सेपरेट स्टोरी पार्ट, सेपरेट कैरेक्टर है स्टोरी। अगर कोई ग्रुप दिख रहा है आपको, सम एक्शन इज गोइंग इन द ग्रुप, so you are advised to write some social response, so social responsibility जिसमें कोई civic sense, समूह से संबंधित कोई अच्छी बात जो कि सोसाइटी के लिए बढ़िया है, that thing is to be done over there. So let us skip to the WAT segment. WAT segment में जैसा कि हमें पता है कि कुछ वर्ड डिस्प्ले किए जाते हैं और वर्ड डिस्प्ले के साथ हमें उनका रिस्पॉन्स लिखना होता है इसमें। तो वर्ड डिस्प्ले के सेगमेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ों को लिखना है, तो मैंने इसके साथ कुछ वर्ड्स को असेंबल्ड किया है, ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। एक वर्ड देखेंगे इसमें, मान लेते हैं इसमें कि वर्क, एक वर्ड आ गया इसमें वर्क। आई हैव कलेक्टेड सम वर्ड फॉर दैट टेस्ट ऑल्सो। सो सपोज वर्ड इज वर्क, सो ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम। अगर एक वर्ड आ गया जिसका नाम है, वर्ड है क्या आपका, वर्क, तो वर्क आ गया आपका, वर्क इज ए नेचुरल न्यूट्रल वर्ड, सो ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम, सो जस्ट गो रिलेटेड। अगर हमने देखा है इसमें एक वर्क आ गया इसमें और हमने सेंटेंस क्या बनाया इसमें, ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम, तो यहाँ पर हमने जो वर्क लिखा है, वर्क का रिस्पॉन्स लिखा है, ही वर्क्स इन टाइम। ये कौन से कैरेक्टर को हमारे डिस्प्ले कर रहा है? ये हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ को डिस्प्ले कर रहा है। यानी कि वर्क का एक वर्ड है, एक सिर्फ क्वालिटी से कितने सारे टेस्ट को इफेक्ट करेंगे हम।
यानी कि हम अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्प्ले कर रहे हैं। एक और सेक्शन देख लेते हैं इसमें, 2-3 मैंने लिए हैं जिससे कि सोशल बिहेवियर भी आ जाए इसमें। तो हम एक काम करते हैं इसमें कि एक्सेप्ट लिखा हुआ या मिस्टेक लिखा हुआ, सपोज वर्ड इज मिस्टेक। आपको पता होगा WAT कैसा होता है इसमें, हमें पता है कि SSB में 4 टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के, TAT, WAT, SRT, SDT। देखिए मेरा रिसर्च है प्रोजेक्टिव टास्क के ऊपर, आई ट्रेन माई कैंडिडेट्स ऑन प्रोजेक्टिव पार्ट। सो बीइंग अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, माई ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग माई डॉक्टरेट इन दैट। सो मेरा पार्ट है इसके प्रोजेक्टिव टास्क के ऊपर काम करना। ये सारी थ्योरीज जो है मैंने इवॉल्व किए इसको, और इसके आउटकम बड़े ही पॉजिटिव आते हैं लड़कों में। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिस्टेक वर्ड आ गया। तो मिस्टेक वर्ड के साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं। ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक। आप बताइए कि मिस्टेक एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट यू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को लेते हैं इसमें। तो एक वर्ड ले लेते हैं इस टेस्ट के लिए, इसमें लेते हैं, इसमें स्मोकिंग ले लेते हैं। यू नो दैट सर्टन वर्ड्स आर कमिंग वेरी फ्रिक्वेंट इन द SSB टेस्ट। तो पहला वर्ड है आपका वर्क, दूसरा वर्ड है आपका मिस्टेक, तीसरा वर्ड है आपका स्मोकिंग। और ये हमने सारे टेस्ट कौन सी क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है? सिर्फ एक क्वालिटी जिसका नाम है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने यहाँ पर एक नया वर्ड लिया है स्मोकिंग। स्मोकिंग जाहिर सी बात है कि मैं चाहता हूँ कि अब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेगमेंट को भी वेट टेस्ट में देखें और उसको कैसे सॉल्व करें। तो आप लिख सकते हैं इसमें ही मोटिवेट्स अदर टू अवॉइड स्मोकिंग। अब बताइए मुझे कि आप जो है यू मोटिवेट्स, आप किसी को बैन नहीं कर सकते, यू आर नॉट द अथॉरिटी। इवन सिगरेट्स, सिगार्स, टबैको, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर सेलिंग इन द मार्केट। सो यू आर नॉट अथॉरिटी, यू कांट पुट बैन ओवर इट। सो आप यहाँ पर क्या करें, आप इसको पकड़ के जो है जेल में नहीं डाल सकते हैं। सो हियर वर्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। सो आप यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं, यू मोटिवेट, ही मोटिवेट्स, क्योंकि हमें पता है रूल कुछ होते हैं, वो रूल तो हमारी क्लास की बात है। तो हमने सिर्फ स्मोकिंग वर्ड के साथ सेंटेंस बनाया, ही मोटिवेट्स अदर टू अवॉइड स्मोकिंग। दूसरों को आप अवॉइड स्मोकिंग करते हैं क्योंकि इससे इसके आउटकम जो है बढ़िया नहीं। तो यहाँ पर जो है अदर्स के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपकी सोशल बिहेवियर में आती है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। मिस्टेक में आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हैं, वर्क में ही कंप्लीट से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर टैट में जा चुके हैं, वैट में जा चुके हैं, अब हम आते हैं SRT में। डू यू नो SRT? SRT मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये आपका रिस्पॉन्स टेस्ट करता है, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को टेस्ट करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें, और ये टेस्ट के ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनके 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और किसी भी लेवल पर आपको 40+ SRT से कम करना ही नहीं चाहिए। 40+ से कम SRT आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। जो भी मेरे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इसमें, उसमें 50+ के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो टाइम का मैनेजमेंट रखना है इसमें, और इसमें पूरे आंसर्स नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लेकिन वो जो आप कहना चाहते हैं वो सेंस पूरा आना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट SRT। तो यहाँ पर SRT में हमें वो SRT कवर करनी है जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कवर होती है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम कुछ SRT ले लेते हैं इसमें। सपोज अगर मान लेते हैं you fail in your final year examination, you didn't score good marks in your final year examination। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि suppose scoring is not good in final year graduation examination somewhere else, something else, so what to write in that। तो यहाँ पर जो है देखिए हम क्या करते हैं, 2 तरह की गलतियाँ करते हैं इसमें। नंबर 1 गलती कौन सी होती है इसमें? I worked hard and score good marks in next year। so here what is the doubt part? this time you didn't work hard। आप कहें नहीं इस बार किया था, तो इस बार किया था फिर भी तो फेल हो गए ना फिर इसमें। तो अगली बार फिर करेंगे फिर से फेल हो जाएंगे, क्या श्योरिटी है? नहीं, अगली बार अच्छे से करूँगा, तो इस बार अच्छे से नहीं किया, यानी ऐसे आंसर्स अवॉइड करना। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिर्फ बात करेंगे इसमें। सपोज यू फेल इन योर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, SRT में जितने भी सिचुएशंस हैं, आपके सारे सिचुएशंस ये इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स सम नेगेटिव आउटकम्स। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो नेगेटिव है और आपको उसको पॉजिटिव बनाना, या उसके अंदर से कुछ आंसर्स लिखने हैं आपको, अपने रिस्पॉन्स बनाना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सपोज यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ बोल दिया आपको,
फाइनल ईयर नहीं बोल के सेकेंड ईयर बोल दिया आपको, तब आप क्या करें इसमें, तब आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नेवर ब्लेम एनीबॉडी एल्स। तो क्या करेंगे इसमें, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे इसे, इंट्रोस्पेक्ट यानी आप अपने बारे में जानेंगे पहले। यू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, वॉट टाइप ऑफ मिस्टेक यू कमिटेड। ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि आपकी श्योरिटी है दैट यू डिड योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन सो दैट यू कांट गेट रिजेक्शन और फेल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन की बात होगी ना इसमें, यू एनालाइज योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ। तो इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद दूसरा चीज़ क्या होगा इसमें, मेक न्यू स्ट्रैटेजी। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ती है, एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। सपोज यू नेवर एक्सेप्ट द मिस्टेक, सो आगे का चीज़ कैसे होगा। आपने कहा इस बार मैं फेल हो गया, अगली बार हार्ड वर्क करके जाऊंगा, यानी कि आप अपने मिस्टेक को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी योजना नहीं बना रहे, लेकिन पहले वाली योजना जिसमें फेल हो गए उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सो हेयर एक्सेप्ट द मिस्टेक, इट मीन्स एक्सेप्ट द मिस्टेक कब होता है आपका, व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट। सो आई इंट्रोस्पेक्ट माई लेक्यूनेस, आई इंट्रोस्पेक्ट what was my failure, what was the mistake I committed, then with new strategy worked hard and scored good marks। तो यहाँ पर हमने SRT में भी जो है अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेव फॉर्म से आंसर को बनाया इसमें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें SRT में भी हमारे क्वेश्चन जो हैं सोशल सिविक रिस्पॉन्सेज से आ जाते हैं। एक और सेक्शन से ले लेते हैं इसमें। एक और बहुत अच्छा रिसेंट मेरे फरवरी में अभी CDS बैच का एक कैडेट था मेरा, ये उसका इंटरव्यू था, उसमें एक SRT था, इसमें वो शेयर करता हूँ आपके साथ में। सो चेन स्नैचिंग इवेंट्स, इवन आई डू नॉट रिकॉल व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन इन दैट टाइम। तो चेन स्नैचिंग इवेंट इन द लोकेलिटी वाज इंक्रीजिंग, यू वुड यानी आपका जो लोकेलिटी है, कॉलोनी जो है, उसमें चेन स्नैचिंग, चेन को स्नैच करने की इवेंट बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अब चेन स्नैचिंग कहाँ पर हो रही है, आपके घर में हो रही है क्या, नहीं, तो पर्सनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रही है, कहाँ पर हो रही है, लोकेलिटी में हो रही है। तो लोकेलिटी यानी ग्रुप में, सोसाइटी में हो रहा है, तो सिविक सेंस में जाएंगे आप, तब आपकी जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारी या तो आप लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या करेंगे आप, ये तो जर्नली क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। तो जर्नली क्या करेंगे, यू कंप्लेन, यू कॉल पुलिस एंड कंप्लेन इट। सोसाइटी में अगर हो रहा है तो आप पुलिस को कंप्लेन क्यों करेंगे भाई, पुलिस आपकी कंप्लेन क्यों रजिस्टर करेगी इसमें। तो आपका सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है इसमें, यू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द इशू एंड विद द हेल्प ऑफ पुलिस कीप विजिल ऑन द स्ट्रेंजर्स एंड हैंड इट टू द पुलिस इफ यू फाइंड इट आउट। क्योंकि बहुत घटनाएं हो रही तो कोई ना कोई स्ट्रेंजर आपको दिख ही जाएगा, ये अकेले का काम नहीं है इसमें। सो नेवर ब्लेम, नेवर आस्क फॉर ओनली हेल्प। Hero means what? Hero means that you are putting your assistance in some action. Action का पार्ट होना चाहिए, आपके क्लास के शुरू से ही पहले पढ़ा है इसमें। If you think about your words, then your action can come. If you think about your action, then your character can come or habit can come. And if you think about your habit, then your character can come. And if you can think on your character, then your destiny may come. तो आपकी किस्मत भी बन जाती है इसमें। तो सबसे पहले इस काम को करें इसमें कि जब हम SRT में इंडिविजुअल के, मैंने बात किया कि अगर आपने मार्क्स स्कोर किया तो आपका ये इंडिविजुअल यहाँ से आ जाएगा, एक्सेप्ट द मिस्टेक। दूसरा, आपकी कॉलोनी में चेन स्नैचिंग इवेंट ज़्यादा हो रही है तो क्या करेंगे इसमें, तो यू टेक इट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी को कुछ अवेयर करके, अलर्ट करके आप पुलिस को कंप्लेन रजिस्टर करेंगे इसमें। क्योंकि पुलिस हमेशा अलर्ट नहीं रहेगी कि पुलिस आके चोर को पकड़े, चोर हमेशा नहीं घूम रहे। आपकी सोसाइटी अगर अलर्ट रहेगी इसमें, तो जब भी कोई स्ट्रेंजर दिखा, वो इवेंट आपने कैच किया और उसको पकड़ के पुलिस को आपने हेल्प किया। सो यहाँ पर आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सो हमने SRT के भी दो क्वेश्चंस को पढ़ लिया इसमें, जिसमें कि एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आ जाते हैं SDT के पार्ट में। SDT के पार्ट में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जो है कौन से दो क्वेश्चंस के साथ एसोसिएटेड है, हमेशा ध्यान रखें, पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स आर टू डिफरेंट डोमेन जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर मैटर करती है। योर पेरेंट्स ऑलवेज फाइंड यू रिस्पॉन्सिबल, इट मीन्स दैट you take small responsibilities of your household activities, you take responsibilities of your siblings, you take responsibility of all whatever the small work at your home. So it is associated so that in the eyes of parents you are responsible. Responsibility कहाँ कहाँ पर होती है, तो पेरेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखना है आपको, अगर आप रिस्पॉन्सिबल लिखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है आपका टीचर। टीचर इज ऑल्सो अ वेरी गुड व्यूअर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरेक्टर।
Teacher always perceive that you are responsible for the work which is assigned. Next, whatsoever the demand of the class, you assist them. Suppose you are the member of the class, and if you have something more, suppose you are a very good student and your teacher appoint you as a monitor, so actually you share your information with your friends. So if something is more in you and you just put it in share, you are volunteer. Volunteer is a social behavior. Volunteer is a social behavior, and you are volunteer to help others. So it is a kind of thing that teacher also perceive it. तो हम पेरेंट्स और टीचर्स के दो ऐसे कंपोनेंट हैं एसडीटी में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, वहाँ पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को ज़रूर लिखें. सो लेट मी रिकॉल यू ऑल द इवेंट दैट वी स्टडीड एट प्रेजेंट. हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी टेस्ट. साइकोलॉजी टेस्ट में आपके टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडीटी आते हैं. हाउ टू राइट क्वालिटीज OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज इन बिहेवियरल फॉर्म. हमें पता है कि हमारी क्वालिटी सिर्फ लिखने से पास नहीं होंगे, हमारा बिहेव लिखने से पास होगा. कंप्यूटर की की बटन में हम 1 2 3 4 कुछ भी दबा ले, ABCD कुछ भी प्रेस करेंगे, इसमें हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट सिर्फ 0 और 1 0 बाइनोमियल फिगर ही कंप्यूटर लेगा इसमें. तो ये उसी तरह से टेस्ट है. आप कुछ भी लिखेंगे, आपका सिर्फ क्वालिटी ही कंपोनेंट एक्सेप्ट होगा, लेकिन क्वालिटी लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा. तो इस बात को ध्यान रखें ज़रा इसमें, क्योंकि क्वालिटी लिखेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि यू आर इंटेंशनली राइटिंग योर क्वालिटी. आई एम इंटेलिजेंट, तो ये कोई नई बात नहीं कही है आपने. सभी लोग चाहते हैं कि अपने अच्छी बातें बताएं. सो यू शुड राइट द क्वालिटी इन बिहेवियरल फॉर्म. और इस बिहेवियर फॉर्म का जो ट्रिक है मैंने आपको एक क्वालिटी के साथ बताया. ये क्वालिटी का नाम है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको हमने क्यों लिया है? क्योंकि एक सबसे बड़ा डोमेन कवर करता है. ये अराउंड आपका 7-8 क्वालिटीज कॉम्पोनेंट को एसोसिएट करता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेन क्वालिटी. ये क्रेन है जो आके बाकी अदर जो डिप्राइव्ड क्वालिटीज़ हैं उनको पुल करता है, वो बाहर निकालता है और फिर उनको अबव एवरेज तक ला के रख देता है उसको. तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑनेस्ट है, एक्सेप्ट द मिस्टेक्स है, डोंट ब्लेम में. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिविक सेंस होना चाहिए, आप किसी चीज़ के वॉलंटियर होने चाहिए. नेक्स्ट है करेज आप में होना चाहिए और अवेयरनेस की बातें होनी चाहिए. नेक्स्ट है, ये सारी तो थ्योरी होगी. अब हम जब टेस्ट में जाएंगे तो टीएटी में अगर कोई अकेला बच्चा होगा जो पढ़ाई कर रहा है तो आप उसके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ स्टोरी लिखिए. अगर कोई पिक्चर दिखाई जाए जिसमें कि आपको ग्रुप से एसोसिएशन है तो आप इसमें सिविक सेंस से रिलेटेड कुछ स्टोरी को लिखें. ऐसी एक और पिक्चर इमेजिन आपको दे रहा हूँ मैं. इन अ मार्केट एरिया, अ वेरी हेल्दी पर्सन और जाइंट टाइप ऑफ पर्सन इज हैविंग अ नेकलेस इन हिज हैंड. आपने देखा होगा इसमें एक रिक्शा में लेडी है. बहुत पॉपुलर स्टोरी है, बहुत सारे पॉपुलर पिक्चर है ये, बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है इसको. तो एक जो है अच्छा खासा तगड़ा चोर है, इसमें हाथ में उसका नेकलेस है और वो भाग रहा है. इसमें मार्केट एरिया है और रिक्शा में एक लेडी बैठी है एंड शी इज शाउटिंग हेल्प हेल्प, और पूरे मार्केट में सभी लोग खड़े हैं इसमें. तो आप यहाँ पर अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस है आप में. तो करेज की जरूरत है कि नहीं यहाँ पर? क्योंकि आपका जो थीफ है, रॉबर जो है, ही इज़ वेरी जाइंट. तो करेज की जरूरत पड़ती है जिम्मेदारी को उठाने में के लिए. इस बात का ध्यान रखें इसमें. तो करेज और वॉलंटियर भी होनी चाहिए, नहीं कि दूसरा दबाव दे आपको. नहीं, आप वॉलंटियर हैं, खुद करना चाहते हैं क्योंकि आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार. तो यहाँ पर मैंने टीएटी में 2 स्टोरीज को आपको बताया, 2-3 अलग अलग स्टोरीज के डायमेंशन, पर्सनल को भी कैसे लिखना है, ग्रुप में भी कैसे लिखना है. नेक्स्ट डब्ल्यूएटी में जब जाते हैं तो डब्ल्यूएटी के कुछ वर्ड्स हैं मैंने लिए हैं इसमें, जिसमें कि वर्क आ गया, आपको मिस्टेक आ गया, आपका स्मोकिंग आ गया, जिसमें कि आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें. नेक्स्ट है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जिसमें आपका दैट इज डिसीजन मेकिंग का स्किल को चेक करना है इसमें. तो इसके हमने कुछ टेस्ट को किए हैं इसमें. नेक्स्ट जब एसडीटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखना है तो आप 2 ऐसे पॉइंट है जहां पर इसको आप डिनाई बिल्कुल मत करिएगा. नंबर 1 है पेरेंट्स, नंबर 2 है आपका टीचर्स. ये दोनों ही पार्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही होनी चाहिए. 5 क्वेश्चन है आपके, योर ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन एंड द क्वालिटीज यू इम्प्रूव. तो 2 सेगमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ज़रूर होना चाहिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो. इस तरीके से ये पूरा टेस्ट है. अगर एक एक क्वालिटी के ऊपर आपने ऐसे ही रिसर्च कर लिया तो आपको पता होगा कि आप जो है किसी से मत पूछिएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल सा रिस्पॉन्स है. और यही है मेरा जो स्कॉलर टेस्ट है आपका, जिसके ऊपर मेरा अभी
रिसर्च चल रहा है इसमें। इसके साथ मैंने एक बहुत अच्छा एक थ्योरी लिखा आपके लिए, एक आर्टिकल लिखा है इसमें, हाउ टू डेवलप 15 OLQs। इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगा, आप उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, क्वालिटी को बूस्टअप करने के लिए हेल्प होता है। तो आई होप दैट यू मे गेट द बेसिक एडवाइस दैट आई शेयर विथ यू, and do write your comments. So if possible, if you think that something is good for you, then please share it with your friends and subscribe it to get more candidates